غالب انسٹیٹیوٹ کے اس آن لائن پروگرام داستانی قرأت میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غالب انسٹیٹیوٹ کی ذیلی شاخ ہم سب ڈرامہ گروپ، جس نے فی الحال ایک یعنی حال ہی میں 2-3 پروگرام آن لائن منعقد کیے جو بہت ہی کامیاب رہے، اور اس کے بعد ہم نے فوزیہ داستان گو صاحبہ سے گزارش کی کہ آپ ہمیں کچھ داستانی انداز میں کچھ جو ہمارے شہ پارے ہیں، ہمارے موجود ہیں، اس کی قرأت فرمائیں۔ تو داستان گوئی میں فوزیہ صاحبہ کی بہت کچھ اولیات بھی ہیں اور آپ کی اپنی منفرد شناخت بھی ہے، جس کا تفصیلی جائزہ ہمارے ڈائریکٹر ادریس احمد صاحب نے پہلی قسط میں لیا تھا۔ آج یہ دوسری قسط ہے۔ میں داستان گو صاحبہ، فوزیہ داستان گو صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی ابتدا فرمائیں۔ آج کی میٹنگ میں کی ابتدا بھی ہمارے ڈائریکٹر ادریس احمد صاحب کو کرنی تھی، لیکن وہ کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، لہٰذا میں ان کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، فوزیہ داستان گو صاحبہ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چچا چھکن نے تصویر ٹانگی کی ڈرامائی قرأت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات آداب، پچھلی بار ہم نے سنائی تھی ہم سب ڈرامہ گروپ کی طرف سے اور غالب اکیڈمی کی طرف سے جو یہ سیریز کا آغاز ہوا ہے، اور یہ چچا چھکن کی سیریز ہے جس میں میں نے پچھلی بار چچا چھکن نے تصویر ٹانگی اور چچا چھکن نوچندی دیکھنے گئے، یہ 2 کہانیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس بار چچا چھکن کیا کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت جاننے کی بہت ہی خواہش ہوگی۔ تو اس بار چچا چھکن نے تیمارداری کی۔ چچا چھکن دل میں بخوبی جانتے تھے کہ تیمارداری ان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے لیے جس جفاکشی، سکون، خاطر اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے وہ انہیں چھو کر بھی نہیں گیا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر اپنی تیمارداری کو عیادت کے درجے سے آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن طبیعت کے ہاتھوں ایسے ناچار ہیں کہ ذرا سی بات میں تاؤ کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز آگا پیچھا سوچے بغیر تیمارداری کے میدان میں جوہر دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چچی کے سلیقے میں انہیں سگڑاپی کی توہین نظر آتی ہے۔ پھر اگر کسی بات میں چچی اپنی غرق ریزی اور ان کی فراغت کی طرف اشارہ کر دیں تو چچا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور دل ناتواں مقابلے کے بغیر باز نہیں رہ سکتا جناب۔ خیر، گھر کے دوسرے قصوں میں جو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، ان مقابلوں کا نتیجہ سبق آموز ہو یا نہ ہو، چچا غیرت والے ہیں تو آئندہ دھیان دیجیے گا حاضرین، آئندہ کسی تیمارداری کا بیڑا تو اٹھائیں گے نہیں۔ تو بات یوں ہوئی کہ پچھلے دنوں للو غریب کو نکلا موتی جھارا۔ شب بارات سے اگلے روز تک جو بل بلا کر بخار چڑھا ہے تو 21 دن گزر گئے جناب، 10 سے مس نہ ہوا۔ گھر میں کام والی لے دے کے ایک چچی، وہ غریب کیا کرے، گھر اٹھائیں، ہنڈیا چولہا دیکھیں، بچے سنبھالیں یا ہر وقت بیمار کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔ ادھر بیمار کے پاس آ کر بیٹھے، ادھر ماما کی آواز آ گئی، بیوی دال دے جاتی تو میں بین لیتی، نہیں اب نہیں کریں تو کل رہ جائے گی۔ باورچی خانے میں پہنچی تو للو نے ٹھنکنا شروع کر دیا کہ میں تو بھائی اماں کے ہاتھ سے ہی پانی پیوں گا۔ اب کس کو ٹالیں اور کس کی خبر لیں؟ دن اسی قواعد میں گزرتا گیا، رات آنکھوں میں کٹتی، پھر 1 دن نہ 2 دن میادی بخار، 3 ہفتے کی محنت نے ادھموا کر ڈالا چچی جان کو۔ 21ویں دن سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ بخار ٹوٹ جائے گا، لیکن 21ویں دن بھی آیا اور ساتھ گزر گیا۔ ایک اور ہفتہ پہاڑ کی طرح سر پر کھڑا ہو گیا۔ تیسرے پہر بیٹھی تولیے سے للو کے جھاواں کر رہی تھی کہ کہیں چچا نے امامی کے ہاتھ پان کی ڈبیا اندر بھیج دی، ساتھ کہلا بھیجا بھائی ذرا خوب اچھی طرح بھر دیں۔
चची फिक्रमंद तो बैठी थी, इधर हाथ भी रुका हुआ था। बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के, पानदान भरते रहेंगे अपने आप ही। पानदान के जवाब में चचा खुद आ मौजूद हुए। वो पानदान भेज दिया तुमने? चची गुस्सा कड़वे घूंट की तरह पी गई। सिर्फ इतना और किया कि बीमार की चरपाई उठवाकर भेज देती आपके पास। चचा को अब इस शरह को समझने की जरा जुर्रत ना हुई। चची के तेवर बेढप थे। लल्लू से मुखातिब हो गए, क्यों बे यार लल्लू, है रावी चैन लिखता है ना, बड़े ठाट से झावा करवा रहे उस्ताद। अब ये कहो तुम उठते कब हो? चची से रहा ना गया, बोली, हाँ हाँ बेटे जल्दी उठ बैठिए, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। अब इतने खुले वार पर चुप रहना चचा के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था। बोले, क्या नहीं तुम समझती हो, तुम्हारे सिवा किसी को बच्चे की फिक्र नहीं है? अब चची के लिए बात खोलकर करने के सिवा और कोई चारा ना रहा। बड़ा तीर मार के 2-3 रोज तीमारदारी क्या करनी समझ बैठी कि वाह 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 कि बस तीमारदारी इनको ही आती है। अरे जनाब ने तो एक बच्चे की तीमारदारी की है, मैं 20 जवानों की तीमारदारी कर चुका हूँ। और अब भी मैंने अगर ज्यादा दखल नहीं दिया और दिल मार के चुप का बैठा रहा तो किसके ख्याल से? अरे तुम्हारे ख्याल से कि भाई माँ है, इसे बच्चे की ममता है, जो जी चाहे कर लेने दो, वरना मुझे खुद का गवारा था कि बीमार बच्चे को तुम्हारे हाथ में छोड़ दो। चची सर फेरते हुए बोली, अच्छा कभी इतनी तौफीक तो तुम्हें हुई नहीं कि घड़ी 2 घड़ी आकर बीमार के पास बैठ जाए। आ जाते हैं सुबह शाम नाक पर दिया जलाकर, उतर गया होगा बुखार। क्या बात, अब तक उतरा क्यों नहीं? तेज है, ओ हो, ये तीमारदारी करेंगे। अब चचा छक्कन, भाई ये कब सुन सकते थे, लेकिन ऐसा ताना जिसमें उनकी काबिलियत के किसी पहलू की तरफ इशारा हो और फिर चची की जबान से उनकी बर्दाश्त से भाई ये बाहर था। उन्हें गालिबन दिल ही दिल में कुछ ऐसा महसूस होता है गोया कि चची ने उनकी बीवी बनकर उन पर बड़ा एहसान धरा है और बीवी का एहसान लेना उनकी मर्दानगी किसी तौर पर गवारा नहीं कर सकती। बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में, तशरीफ ले जाइए, मैं कर लूंगा तीमारदारी अपने आप। अब चची ऐसे दावों की हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। नाक चढ़ा के बोली, क्या करूं, पत्थर तले हाथ दबा है। डॉक्टर ने कह रखा है कि 1 से ज्यादा तीमारदार बच्चे के पास ना रहे, घर में शोर गुल ना हो, वरना मुझे तो इनकार ना था, कह देती ये अरमान भी शौक से निकाल के देख लो। अब ना मालूम चचा ऐसे मौकों पर जानबूझकर अनजान बन जाते हैं या इसी किस्म के गुज़िश्ता दावों के अवाकिब उन्हें याद नहीं रहते। बोले, अच्छा तुम एक तीमारदार और मैं 1 से ज्यादा हो गया, वो क्यों भाई? और ये शोरगुल कैसा? तुम तो जैसे चुपशाह का रोजा रख के बैठती हो यहाँ पे। चची जल के बोली, चुपशाह का रोजा नहीं रखती तो बात बात पर इमामी, मोदे और बंदू को पुकार पुकार कर घर भी सर नहीं उठाती मैं। हाँ। चचा बिगड़ के बोले, अच्छा जाइए, मोदे और इमामी और बंदू को भी बावर्ची खाने में घुटने से लगा कर बिठा रखी, मैं उनके बगैर भी जनाब को दिखा दूंगा कि क्यों करते हैं तीमारदारी। अब चचा को कमजोर हरीफ समझकर चची आम तौर पर ऐसी बात गोल कर जाया करती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें भी ना मालूम क्या हुआ, जैसी बैठी थी वैसी ही उठ खड़ी हुई और झावे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा कर सीधा बावर्ची खाने को चल दी। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद चचा को नहीं थी। हैरान से रह गए। 1 मिनट तो चुपचाप तौलिए को देखते रहे, आखिर जिम्मेदारियों और मजबूरियों के एहसास से खिसियानी हंसी हंस पड़े और लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती हैं बस इन्हें ही आती है तीमारदारी है और सब तो अपाहज है।
अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कबीदा खातिर हो गया था, करवट लेकर पड़ा रहा। गालिबन तकल्लुफन चचा ने पूछ लिया, क्यों भाई, झावा करते रहे? लल्लू ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चुनांचे चचा के लिए इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि झावा करे और बगैर किसी की मदद के करें। बोले, हम आप कर लेंगे अपने बेटे के झावा। अरे जरा तामुल के बाद आप वो चारपाई पर बैठ गए। बोले, लो भाई, हम तो करते हैं झावा और तुम हमसे करो बातें। झावे के लिए तौलिया बिछा कर पहले सब पहलुओं पर ऐसे तकल्लुफ और एहतमाम से तय किया गया जैसे चचा झावे के लिए गद्दी नहीं बना रहे, बीमार के दिल बहलाव के लिए तौलिए की नाव तस्नीफ फरमा रहे हैं। इस दौरान में लल्लू से बराबर मुखातिब रहे, भाई ये चुप साधने की शर्त नहीं है, यूं तुम्हारा दिल घबरा जाएगा बेटा, बातें करनी होंगी हमसे। हाँ अच्छा ये बताओ, अच्छे होकर तुम खाओगे क्या? 21 दिन का बीमार, भला बातें क्या करी? करवट लिए चुपका पड़ा रहा। तौलिया तह कर चुकने के बाद चचा के चेहरे पर बड़ी फक्रिया और एक इत्मीनान वाली मुस्कुराहट खेलने लगी। अब बनी ना गद्दी झावे की, इसे कहते हैं गद्दी, कभी देखी भी ना होगी बेगम साहिबा ने। चचा ने झावे शुरू ऐसे जोरों शोर से किया गोया झावा नहीं कर रहे, पांव पर मालिश कर रहे हैं। बातें मजबूरन बंद कर दी थी क्योंकि हाथ की हरकत के बाइस 3 गीत की ताने बनकर हलक से निकलती थी। बार बार गर्दन बढ़ाकर सहन की तरफ देख रहे थे कि शायद किसी से नजरें चार हो जाएं और वो उस कारे नुमाया की खबर चची तक पहुंचा दे। सांस फूला हुआ था, बात ना होती थी, मगर महज चची को सुनाने को कहे भी जा रहे थे। हाँ भाई, मजा आया होगा झावे का, भाई बड़ी मेहनत का काम है झावा। हाँ, एक तरह का फन समझना चाहिए। लेकिन 5 ही मिनट बाद सूरत हाल में तब्दीली रोनुमा हुई। पहुंचे और कोहनियां दुखने लगी, बाजू ढीले पड़ गए, हाथ रह गए, दिल उकता गया, उठने की फिक्र होने लगी, मगर अब उठे क्यों कर? खुद उठते हुए नदामत होती थी। लड़का बस करने को कहता नहीं था, न उम्मीद थी कि कहेगा। वो आंखें बंद किए ऐसा खामोश पड़ा था गोया उसे खबर ही नहीं कि चचा पर क्या गुजर रही है। आखिर कुछ देर बाद तंग आकर चचा ने हाथ रोकना और उससे पूछना शुरू किया, क्यों भाई बेटा, प्यास तो नहीं लगी? पानी लाऊं? अच्छा अनार के दाने निकाल दो? अरे हाँ लल्लू, वो जो तूने पौधा लगाया था ना क्यारी में, उस पर फूल आ गए हैं, लाके दिखाऊं? मगर लल्लू ने ऐसी किसी चीज की फरमाइश ना की जिसे लाने के लिए चचा को उठने का मौका मिल सकता। इसी तरह गुमसुम चुपका पड़ा रहा। 2-1 दफा चचा ने ऐसा बेखलल अंदाज इख्तियार करके उठने की कोशिश की गोया उनकी राय में लल्लू सो गया है, मगर उनके हिलते ही लल्लू कराने लगा, आंखें खोल दी। चुनांचे चचा को तोहन करहन फिर बैठ जाना पड़ा। पांव सो गए, हाथ कांपने लगे थे, कभी बैठने का अंदाज बदलते, कभी झावा रोक कर एक हाथ से दूसरे हाथ का बाजू दबाने लगते। झावा बराए नाम हो रहा था, मरीज भी बेचैन था। चचा घबराई घबराई नजरों से इधर उधर तक रहे थे कि किसी तरह उठने का कोई बहाना मिले, मगर किसी तरह मुश्किल आसान ना होती थी। आखिर दिल कड़ा करके बोले, बस भाई अब ज्यादा झावा नहीं करते, बेटा खुजली और हो जाती है। अब ये ना मालूम हुआ कि मरीज को गोया झावा करने वाले को। हाँ बेटा, ये कहकर चचा फौरन उठ खड़े हुए और आराम से कुर्सी पर दराज हो गए। तीमारदारी का जोश कुछ सर्द सा पड़ गया था। बड़ी देर तक मुंह बना बना कर अपना हाथ दबाते और उंगलियां चटखाते रहे, टांगे फैला फैला कर थकन उतारी। हवास बचा हुए तो लल्लू की तरफ तवज्जो की। सो गए लल्लू? लल्लू भैया नींद आ गई क्या? अच्छा अच्छा चलो सो रहो। बाहर चची ने आवाज सुनी,
छुट्टन के हाथ कहला भेजा, सोने ना देना, दवा का वक्त है। सिरहानी छोटी मेज पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। चचा दवा देने को उठ खड़े हुए, शीशी हाथ में लेकर लेबल पड़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी खुजलाई, पेट सहलाया, बेताब थे कि किसी को इमदाद के लिए पुकारें, लेकिन आज के दिन किसी की इमदाद लेना गैरत को गवारा ना था। मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमादा हुए। शीशी रख दवा निकालने के लिए प्याली लाए, उसकी डांट निकाली। पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर डांट को प्याली में उड़ेलने की कोशिश फरमाई, उसके बाद ला हौल वला कुव्वत, डांट मेज पर रख दिया और शीशी से दवा उड़ेलनी शुरू करी। बूंद बूंद भर निकालते और आंखें चुंदिया चुंदिया कर खुराक का निशान देख लेते। जरा सी दवा निकालनी बाकी थी कि शीशी जरा ज्यादा उलट गई और 1.5 खुराक निकल आई। चाचा ने पहले तो प्याली टेढ़ी की कि ज्यादा खुराक गिरा दें, फिर ख्याल आया कहीं जरूरत से ज्यादा दवा खुराक की मिकदार कम ना हो जाए। चुनांचे इरादा किया कि जो ज्यादा दवा निकल गई है वो शीशी में ही डाल कर इत्मीनान कर लूं। प्याली से दवा शीशी में मुंडेली। आप जानिए प्याली की चोंच तो होती नहीं है कि दवा शीशी में चली जाती, बाहर बहकर नीचे गिर पड़ी। चचा ने जरा हाथ रोक कर सोचा अब क्या करें। इसके सिवा चारा नजर न आया कि प्याली में जो दवा बाकी रह गई थी वो भी शीशी में उड़ेल दें और फिर दोबारा से एक पूरी खुराक निकालें। चचा यक लक उंडेली दवा शीशी में तो जरा सी रह गई, बाकी सब कुछ हाथ पर बहती फर्श पर गिर पड़ी। छुट्टन के हाथ चची ने अनार के दाने निकाल कर भेजे थे। वो गरीब खड़ा दवा निकालने का ये तमाशा देख रहा था, उसे हंसी आ गई। ऐसे मौके पर अगर कोई हंस पड़े तो चचा को आग लग जाती है। सर फेर कर लाल पीली आंखों से उसे घूरा, अब बदतमीज कहीं का, अबे हंसा काहे परे तू, और ये क्या मौका था हंसी का, पीट पीट कर तुझे उट्टू कर दूंगा। गरीब खैर गर्ज गरीब को डांट डांट कर उनक्खा कर दिया। हाथ पोंछ पांच चची ने शीशी को जो देखा तो दो आधे निशान तक थी बस दवाई, आधी इस अदला बदली में जाये हो चुकी थी। अब क्या करें। आधी खुराक से आधी खुराक तक दवा निकालना आसान ना था। चुनांचे गौर खौस के बाद तय ये किया कि बकिया आधी खुराक भी जाया कर दी जाए और इससे अगली पूरी खुराक निकाली जाए। क्योंकि बाकी खुराक मरीज को ना देनी थी बल्कि जाया करनी थी, इसलिए उसे एहतियात से निकालने की जरूरत चचा को न सूझी। दरवाजे में जा शीशी जरा बेफिक्री से दरवाजे में उलट दी। अब जो शीशी आंखों के सामने लाकर देखते हैं तो फिर आधे ही निशान तक, मगर अगली से अगली खुराक के चचा झिझला उठे। बेसाख्ता चंद ना गुफ्ताबा कलमात उनकी जबान से निकल गए, मगर कहर दरवेश बरजान दरवेश क्या कर सकते थे। इमामी बंदू का तो कसूर नहीं था कि गुल मचा मचा कर दिल की भड़ास निकाल लेते। अगली आधी खुराक जाये करने के अमल में मसरूफ हो गए। किस्सा मुख्तसर, कोई आधे घंटे और 5 खुराकें जाया करने के बाद चचा खातिर ख्वाह तौर पर दवा निकालने में कामयाब हो गए। लल्लू की आंख लग गई थी, उसे जगाया तो वो ठिनकता हुआ जागा। बच्ची के ठिनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था। दबी जबान से उसे चुपकारा और उसे तरह तरह के झूठे वादे किए। एक तो जनाब मन, हमने तुम्हारे लिए डोर की पूरी रील मंगवाई है, और जनाब दूसरे गुलशन से कहा है कि 1 दर्जन रंग बिरंग की वो जो तुम खिलाते हो ना, क्या है कटकटियां, हाँ बना कर लाए। बस इधर तुम अच्छे हुए और इधर पेंच लड़ने का सामान हुआ। चचा चारपाई पर चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया, दवा देने लगे तो ख्याल आया कि कुल्ली के लिए पानी तो लाए नहीं, और फिर उसे लिटाकर भागे भागे पानी लेने चले गए। पानी की प्याली मेज पर रखी, फिर चारपाई पर चढ़े, लल्लू को उठाया, समझा बुझा कर बड़ी दिक्कत से दवा देने पर आमादा किया। अब जनाब ने क्या तमाशा किया कि पानी की प्याली तो उसके मुंह से लगाती और कुल्ली के लिए दवा की प्याली हाथ में थाम कर बैठे रहे। जब उसने खुद ही ठिनक कर बताया ये तो पानी है,
तो आपको अपनी गलती मालूम हुई, नदामत तो क्या होती। और ये कहकर प्यालियां बदली और दवा की प्याली लल्लू को दी। खाली प्याली उसके हाथ से लेकर कुल्ली के लिए पानी दिया तो अब उगालदान का ख्याल आया। घबरा कर उगालदान लेने को लब के बच्चे का सर धड़ से तकिए पर आ गिरा। इधर दवा से उसका मुंह कड़वा हो गया था, उधर लगा सर को धचका, जोर जोर से रोने लगा। अब आप उसके आगे गिलास करते हैं, कभी उगालदान, कभी अनार के दाने, मगर बीमार की जिद, वो किसी चीज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता जनाब। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। चचा घबरा घबरा कर कभी लल्लू को देखते हैं, कभी दरवाजे को कि कहीं चची ना आ रही हो। बच्चे को कभी लिपटाते हैं, कभी मिन्नतें, कभी खुशामदें करते हैं, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। मजबूरन चची की सामिया नवाजी को बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, भाई अब हमने तो दवा में कड़वाहट नहीं मिलाती है, भाई ऐसी होती हैं इन डॉक्टरों की दवाएं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है देखो बेटा, और ना हम जिम्मेदार हैं। यूं अम्मा ही को बुलाने को जी जा रहा है तो तुम जानो भाई। चची बावर्ची खाने से फारिग हो चची के पानों की डिबिया भर रही थी, वहीं से बोली, आई बच्चे, आई आई। इतनी में चची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। चची उसकी हिचकी बन गई थी। चचा के हाथ पांव अलग फूल रहे थे, अब उनसे तसल्ली भी नहीं दी जाती थी। अलग खड़े सरासीमा नजरों से उसे देख रहे थे। मुंह तक बात आती थी मगर निकल नहीं सकती थी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते थे मगर न उठता था। चची आई तो उनके हवास बजा हुए बोले, आप ही आप रोने लगा, बस दवा दी थी। चची ने पान मेज पर रख दिए। ओ मेरा चांद, मेरा लाल, कहती हुई लपक कर सिरहाने बैठ गई। बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। बच्चे को जरा सुकून हुआ तो चचा पान की तरफ मुतवज्जे हुए। पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रठी माँ की लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। चची ने लल्लू के माथे पर हाथ फेरा तो ठंडा ठंडा था, हाथ देखे तो वो भी ठंडे। बोली, हाय हाय, इसे तो जुल्फ का दौरा पड़ गया, पिंडा ठंडा पड़ रहा है, रंगत भी पीली पड़ गई है। अरे कोई दूध लाओ दूध, अरे पीछे चूल्हे पर रखा है, बलाई हटाकर लाना। तीमारदारी से अभी चचा का बाज़ाब्ता छुटकारा तो हुआ नहीं था। प्याली उठा खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी। दूध निकालने को उठने लगी, चचा के मुंह थी पीक, करके उसे रोक दिया। लड़के के बढ़ने लगे, करके उन्हें भी रोक दिया। जो बाकी नौकर थे, भाई तुम नहीं। खुद देगची उठाकर दूध उड़ेलने लगे। दूध जोश पर आकर ठंडा हो रहा था। उस पर आ गई थी बलाई। चची ने कहा था बलाई उतार कर दूध लाना है। अब बलाई हटाने को आप रखकर एक फूंक जो मारते हैं तो पान की सारी पीक देगची में दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखें, कभी कोई इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आता था ये कसूर किसका था। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी, उठ खड़े हुए, बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब आ खड़े हुए और थोड़ी खुजलाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटखनी लगा ली। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठाकर फिर अंदर घुस गए। इस वाकये से घर में जो तकद्दुर पैदा हुआ था वो लल्लू की सेहतयाबी से पहले रफा नहीं हो सका। हाज़रीन, तो खातिनो हजरात, ऐसी तीमारदारी से अल्लाह बचाए और किसी को भी ऐसा तीमारदार मैसर ना हो। तो ये थी चचा छक्कन जिन्होंने आज तीमारदारी की। अगली सीरीज में वो क्या करने वाले हैं ये तो हम आपको अगली किस्म में ही बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया दस्तान को साहिबा, आपकी गुफ्तगू से और उसके अंदाज से और उसके कलाम से हम सब महसूस हो रहे थे
بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے سنایا کیا ہے دکھایا ہی ہے، اور جو آپ کی شناخت بھی ہے ہم آپ کے اور ان تمام ناظرین کے جو اس میں شریک تھے، اس کو آن لائن دیکھ رہے تھے یا آئندہ دیکھیں گے، سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.